So, dear students, welcome to you all in my online class. This is your teacher Rakesh Kumar Mishra from Kendriya Vidyalaya number 3 Air Force Station Chakeri, Kanpur. Dear students, earlier we were discussing indifference curve analysis. We have finished two part of video regarding this concept. In first part we have discussed what we have discussed. In first part we have discussed meaning and properties of indifference curve. This we have already done, and in second part we have done budget line. Now today we will discuss this third part, that is determination of consumers equilibrium using indifference curve and budget line. So quickly, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था definition of indifference curve, then I told you assumption of indifference curve, then I told you what is the schedule and how to derive indifference curve, and I here in this slide I told you how to plot the indifference curve analysis, and then we came to discuss marginal rate of सब्स्टिट्यूशन दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. मैं आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूँ लास्ट वीडियो को शुरू, यानी वीडियो पार्ट 3. बिफोर वी गो टू बिगिन वीडियो पार्ट 3 रिगार्डिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, वी आर quickly revising the things. I told you what is diminishing marginal rate of substitution. We have done it. We have also done how to geometrically prove law of diminishing marginal rate of substitution. I told you properties of indifference curve. Property 1, property 2, it is done. Property 3, it is done. This is invalid point, all you know. And I have discussed you fourth property of indifference curve analysis. That is higher indifference curve shows higher satisfaction, lower indifference curve shows lower level of satisfaction. I have already discussed this fifth and sixth property. I told you the budget line and the definition of budget line. Tell me definition of budget line. आप सबको ये learn हो गया होगा अब तक. It's okay. I told you what is the schedule of how to make schedule of budget line and how to derive budget line. This is unattainable portion, these are attainable portions. Okay, I also told you what is slope of budget line. Slope of budget line क्या होता है dear students? Px upon Py. It is the slope of budget line. I have also told you what is equation of budget line, that is m is equal to Px into capital X plus Py into capital Y. Hope you remember it. Now let us quickly begin today's topic, that is consumer equilibrium by indifference curve analysis. This is part 3 of the video. After this chapter will be finished. So let us begin with third part. Third part of the video begins from here. तो dear students, चलिए आप मुझे बताइए कि when a consumer will be in equilibrium. This is very common knowledge for all of you, for all of us up to this time, because already you have studied consumer equilibrium utility approach. When a consumer will be in equilibrium, a consumer will be in equilibrium when he attains maximum level of satisfaction. तो चलो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और इसी बात को हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के माध्यम से डिस्कस करें. सो कंज्यूमर चूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट विल मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन दे कैन अचीव गिवन द लिमिटेड बजट अवेलेबल टू देम. गिवन द लिमिटेड बजट अवेलेबल टू देम, ये आपको ध्यान में रखना है. इसीलिए बजट लाइन के बगैर आप इंडिफरेंस कर्व का से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं. व्हेन कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम, व्हेन कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फेक्शन. सो इन लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ बजट. सो मैक्सिमाइजिंग कम्बिनेशन मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशन. देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होंगी विथ when we are discussing consumer equilibrium with indifference curve approach. There will be two conditions. Condition 1, here you see condition 1. Condition 1 हम लेते हैं. Condition 1 ये है कि
कंडीशन 1 ये है कि बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, देयर विल बी टू कंडीशंस फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। द फर्स्ट कंडीशन इज बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। देख मीन्स इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये हो कि ए कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। ध्यान रखिए, ये नहीं कह रहा है वेयर बजट लाइन वेयर इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट्स बजट लाइन, ये कह रहा है वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टच करके, स्पर्श करके निकलेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। तो अच्छा, यहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि अच्छा बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, पी एक्स अपान पी वाई, और पी एक्स अपान पी वाई, ओके। और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप भाई एम आर एस एक्स वाई होता है, एम आर एस एक्स वाई। तो वे जहां पर दोनों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां वेयर इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू बजट लाइन। तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है ये हमारे एक्स वाई, और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है पी एक्स अपन पी वाई। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कंडीशन नंबर 1 को कि कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर हमारे एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपान पी वाई। तो डियर स्टूडेंट, इस फार्मूले को जरूर याद रखें आप, इस फार्मूले को जरूर याद रखें आप। ये फार्मूला क्या बना हमारा, ये हमारे एस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स अपान पी वाई, जहाँ होगा वहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। इसी बात को हम टेक्सचुअली ऐसे कह सकते हैं कि वेयर बजट लाइन विल बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। ये कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। ये बात आपको इसमें लिखी गई है। ओके, थैंक यू। लेट अस गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन जहां पर सेटिस्फाई होगी वहीं पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन क्या है, सबको रिमेंबर हो गया, पिछली स्लाइड में था। क्या है फर्स्ट कंडीशन कि कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, और एल्जेब्रिकली कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम वेयर हमारे एक्स वाई विच इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व विल बी इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई दैट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। ओके, ये फार्मूला हम लास्ट वाली पिछली स्लाइड में लिख चुके हैं। तो अब जरा स्टूडेंट्स ये डायग्राम आप देखिए, यू सी दिस डायग्राम, विल द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम ऑन पॉइंट ई, ऑन पॉइंट ई, ये ई पॉइंट देखिए, ई पॉइंट पर क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा क्योंकि ई पॉइंट मैंने आपको बताया था जो बजट लाइन के बियॉन्ड पॉइंट, व्हेन आई वाज टीचिंग बजट लाइन आई टोल्ड यू दैट द पॉइंट विच इज लोकेटेड बियॉन्ड बजट लाइन विल नॉट बी अटेनेबल फॉर कंज्यूमर। सो दैट इज ट्रू हियर कि हियर ई पॉइंट इज बियॉन्ड द बजट। ये आपकी बजट लाइन है, ये देख रहे हैं ना, ये जो पर्पल कलर की लाइन है ये आपकी बजट लाइन है, और ये ब्लैक कलर का जो कर्व है ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। ये तो जो है ई पॉइंट जो है ये इट विल नॉट शो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बिकॉज दिस पॉइंट इज डिस्टेंट फ्रॉम बजट लाइन। ये पॉइंट जो है वो बजट लाइन के बियॉन्ड है, बजट लाइन के बाहर है, ये पॉइंट बजट लाइन के बाहर है। सो कंज्यूमर विल नॉट अटेन इक्विलिब्रियम ऑन पॉइंट ए, सो दिस केस इज रॉन्ग। हियर कंज्यूमर विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम. This indifference curve is not going to locate consumer's equilibrium because this entire indifference curve is locating beyond consumer's budget line. So let us see next case. तो एक मिनट और बता दें, ये यहां पर क्या हो रहा है, द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड. फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड. नाउ लेट अस सी द सेकंड, लेट अस सी another case. Dear student, tell me whether the consumer will be in equilibrium on point C or B. क्या कंज्यूमर C और B पर इक्विलिब्रियम में हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता. Why? Because on point B indifference curve is not tangent to budget line but it is intersecting budget line. I told you earlier, I gave you this warning earlier कि intersection point इक्विलिब्रियम पॉइंट को नहीं दिखाएगा, टेंजेंसी पॉइंट जो होगा वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दिखाएगा. एंड सी पॉइंट सी ये तो इंडिफरेंस कर्व पर है ही नहीं है, पॉइंट सी इंडिफरेंस कर्व पर है ही नहीं है, तो ये भी एक कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को नहीं दिखाएगा. तो पॉइंट बी, यहाँ रीजन लिखा हो, पॉइंट बी डज नॉट मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन बिकॉज
देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी विच इज अटेनेबल एंड यील्ड से हायर सेटिस्फेक्शन। यहाँ पॉइंट सी जो है जो कि अटेनेबल भी है और बी से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को देगा, क्योंकि आप सोचिए अगर एक इंडिफरेंस कर्व यहाँ सी से जाता हुआ हो तो वो तो जो है कंज्यूमर इस इंडिफरेंस कर्व पर इक्विलिब्रियम में होगा, ना कि पिछले इंडिफरेंस कर्व पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। क्यों? क्योंकि ये सी पॉइंट वो अटेन कर सकता है, लेकिन जब वो सी जो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को देगा उसको अटेन कर सकता है तो फिर वो बी पे इक्विलिब्रियम में रहे। तो दिस इज अगेन ए इनवैलिड केस। लेट अस सी नेक्स्ट। अब ये आ गई आपकी असली स्लाइड, इसको आप बार बार देखिए, अपने जहन में बैठा लीजिए। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट सी पर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो IC2 है, ध्यान रखिए, जो IC2 है, IC2 is tangent to budget line on point C and this is the uppermost indifference curve which is attainable for consumer, which is attainable. There are indifference curve IC3 and IC4 which give more satisfaction than IC2, but they are unattainable. IC3 and IC4 are unattainable, whereas IC2 is attainable because it tangent to budget line on point C. So on point C, consumer will be in equilibrium. Consumer will not be in equilibrium on IC1. Why? Because IC1, though the points of IC1 is attainable, but there is one more indifference curve which is located above IC1, and you know, as per property of indifference curve, that higher indifference curve will show higher satisfaction, lower indifference curve will show lower satisfaction. तो IC1 और IC2 दोनों को कंज्यूमर अटेन कर सकता है, जिसमें IC2 उसको हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन देगा। इसलिए IC1 पर इक्विलिब्रियम में होने का सवाल ही नहीं है, IC2 पर इक्विलिब्रियम में होगा और IC2 के C पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होगा, बिकॉज दिस इज द टेंजेंसी पॉइंट बिटवीन इन बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। IC3 and IC4, though the IC3 and IC4 are located above IC2, they will of course give more satisfaction than IC2, but these are unattainable indifference curve. So consumer will be in equilibrium on point C. Consumer will be in equilibrium on point C because indifference curve is tangent to budget line on point C. इसको हम कैसे कह सकते हैं कि on point C MRS XY is equal to PX upon PY, ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। पॉइंट सी पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हमारे XY इज इक्वल टू PX अपान PY। यहाँ देखिए लिखा गया है, आप इसको लिख लेंगे अपनी कॉपी में। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट सी वी would have slope of indifference curve हमारे XY equal to the slope of budget line PX upon PY on point C। हमारे XY is equal to PX upon PY, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको आप ऐसे फार्मूले की तरह लिख सकते हैं, MRS XY is equal to PX upon PY। तो ये हो गया आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, ये हो गया आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का फार्मूला। ओके, let us see next slide. Now I am coming on condition 2. मैंने बताया था ना, there are two conditions of consumer equilibrium. First is indifference curve should be tangent to the budget line, that is हमारे XY is equal to PX upon PY. Now coming on condition 2. Condition 2 is that indifference curve must be convex to the origin. Indifference curve must be convex to the origin. If indifference curve is not convex to the origin, then consumer will not be in equilibrium. You cannot determine consumer's equilibrium by indifference curve approach if indifference curve is straight line or concave to the origin. In these both cases, consumer will not be in equilibrium, whereas consumer will be only in equilibrium when the shape of indifference curve is convex to the origin. ये कंडीशन 2 है। अब आप देखिए, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, first condition is known as necessary condition and second condition is known as sufficient condition. A consumer will be in equilibrium when necessary and sufficient both conditions are satisfied. So you see, in this case on point E, the first condition is being satisfied because on point E indifference curve is tangent to the budget line, but E cannot be
E cannot be equilibrium point because MRS will be increasing at E whereas it should be diminishing. और आप जानते हैं when MRS XY will be diminishing, what will be shape of indifference curve? Shape of indifference curve will be convex to the origin. ये convex to the origin shape हो जाएगा, ठीक है. इफ तो दूसरी कंडीशन और सफिशियंट कंडीशन क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कि इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन, ऐसा होना चाहिए, बाकी तरह का नहीं होना चाहिए. जैसे देखते हैं आप ना इंडिफरेंस कर्व ऐसा, अगर इन हमारे सेक्स वाइज इंक्रीजिंग तो ऐसा बन जाएगा, इफ हमारे सेक्स वाइज कांस्टेंट तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा. ओके, लेट अस गो टू नेक्स्ट पॉइंट. यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है और जल्दी से बताते हैं, वीडियो लंबा नहीं खींचते हैं. इफेक्ट ऑफ चेंज इन बजट और इनकम. अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाता है, कंज्यूमर का बजट बढ़ जाता है, इफ कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज देन व्हाट इफेक्ट इज विजिबल ऑन बजट लाइन. तो इफ अगर आप सोचिए कंज्यूमर का इनकम हमारे एग्जांपल में कितना था, बजट लाइन जब हम आपको पढ़ा रहे थे एग्जांपल में, हमने कंज्यूमर का इनकम हरीलाल या प्यारेलाल का कितना लिया था 24 रुपीज़. याद रखिए, अगर कंज्यूमर का इनकम 24 से बढ़ के 36 हो जाता है तो देखिए ये बजट लाइन अपवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी. अगर कंज्यूमर का इनकम घट करके 12 रुपीज़ हो जाता है तो जो बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, या इनवर्ड भी इसको कहते हैं, इनवर्ड शिफ्ट कर जाएगी. तो बात याद रखने की क्या है आपको कि इफ कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज देन बजट लाइन विल शिफ्ट राइटवर्ड और अपवर्ड. इफ कंज्यूमर्स इनकम डिक्रीजेज देन बजट लाइन विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड यानी इनवर्ड, नीचे की तरफ खिसक आएगा. अब आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्लाइड ठीक से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. कंज्यूमर का इनकम बढ़ करके 24 से 24 रुपीज़ से 36 रुपीज़ हो जा रहा है, तो इनका तो बजट लाइन शिफ्टेड टू राइटवर्ड. ये देखिए राइटवर्ड इधर जा रही है. ये पर्पल लाइन इज कन्वर्टेड इनटू ब्लू लाइन, दिस शोज राइटवर्ड शिफ्ट. एंड देन इफ कंज्यूमर्स इनकम डिक्रीजेस for 24 rupees to 12 rupees, then purple line is converted in this, ये see this green line, and this shows inward shift of बजट लाइन. तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इफ कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज देन बजट लाइन विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड. क्या आप करेंगे? ये कंज्यूमर्स इनकम विल कंज्यूमर्स बजट लाइन विल शिफ्ट राइटवर्ड या अपवर्ड बोलेंगे इसको. ओके, देन कम टू नेक्स्ट, understanding income effect. See, income effect, price effect, substitution effect, this is not in your syllabus, so I am going to skip this slide. Effect of change in price of a good, yes, this is in your syllabus. Effect of change in price of good. Suppose that if x good हमने क्या लिया था एप्पल, y good क्या लिया था ऑरेंज. अगर एप्पल का प्राइस कम होता है तो बजट लाइन में किस तरह का शिफ्ट होगा. ये स्लाइड बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, हॉट्स बनते हैं यहाँ पर आपके एग्जाम में कि इफ प्राइस ऑफ x good मीन्स प्राइस ऑफ एप्पल इंक्रीजेज देन बजट लाइन विल get steeper. Okay, budget line will shift to towards point of origin. अगर ध्यान रखिए if price will increase then budget line will shift towards point of origin, and budget line will get steeper. And if price decreases then budget line will get flatter and it will shift to rightward. So important concept क्या है, ये एक बजट लाइन है. ओके, इफ यहाँ पर x गुड है, ओके, इफ x गुड गेट्स चीपर देन बजट लाइन विल शिफ्ट लाइक दिस. लेट मी चेंज द कलर. देन बजट लाइन विल शिफ्ट लाइक दिस. ओके, दिस इज राइटवर्ड शिफ्टिंग. एंड इफ प्राइस ऑफ x गुड इंक्रीजेस, if price of x good increases then budget line will shift to leftward. Okay, दिस लाइक दिस. तो यहाँ पर वाई कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो दिस पॉइंट विल रिमेन कांस्टेंट. यहाँ पर कोई चेंज नहीं है. एक्स की प्राइस चेंज हो रही है तो एक्स की प्राइस चेंज हो रही है तो आइदर बजट लाइन विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड ऑन एक्स एक्सिस ओनली. इफ नेक्स्ट दोबारा से हम आपको रिपीट करके बता रहे हैं, यहीं पर कंफ्यूजन होता है, इसको याद रख लीजिएगा. अगर प्राइस बढ़ेगा एक्स कमोडिटी का, यानी जो जो कमोडिटी एक्स एक्सिस पर है उसका प्राइस घटेगा. इफ प्राइस डिक्रीजेज देन बजट लाइन विल गेट फ्लैटर एंड विल शिफ्ट टू राइटवर्ड. इफ प्राइस इंक्रीजेज देन बजट लाइन विल गेट स्टीपर एंड विल शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड. ओके, ये आपको पता चल गया होगा. थैंक यू. आगे हम बढ़ते हैं.
अब जल्दी से इस चैप्टर को हम सम करते हैं। जल्दी इस चैप्टर को सम ऐसे करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग कंज्यूमर्स बिहेवियर। आपने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी और बहुत अच्छी थियरी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पढ़ी है, दैट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आपकी सिलेबस में 2 थियरी है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय यूटिलिटी अप्रोच, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो इंडिफरेंस कर्व की ये जो पूरी थियरी है ये J.R. हिक्स और R.G.T. एलन द्वारा दी गई है, आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड दिस इज वन ऑफ फाउंडेशन स्टोन ऑफ द एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। So beside explaining consumer equilibrium and consumer surplus, indifference curve are useful in the field of production, distribution, exchange, public finance, international trade, but it has a number of questionable assumptions. Accordingly, simulation has provided the hypothesis of revealed preference hypothesis. Means देखिए जो indifference curve analysis है, it is improvement over the Marshallian approach of consumer equilibrium, that you have studied the single and double commodity model of utility approach of consumer equilibrium. So this indifference curve approach is an improvement over that theory. This is also one of the modern theory of consumer equilibrium. So although it has some flaw, it has also some flaw. ऐसा नहीं कि मार्शल के ही अप्रोच में खराबियां थी, इनके भी अप्रोच में बहुत सारी खराबी। एक मैं आपको बात बताता हूँ, इस थ्योरी को नई बोतल में पुरानी शराब कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आप पढ़ करके हमें बताइएगा। ओके, तो ये जो है इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इस थियरी की कमियों को दूर करने के लिए नई थियरी, इसके ऊपर जो इम्प्रूवमेंट वाली थियरी आई है वह है हाइपोथेसिस ऑफ रिवेल्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस, दैट इज सैमुअल्सन्स अप्रोच ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड रिवेल्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस, which you will study later on when you will do graduation in economics. So thank you very much student, thank you for listening everything patiently, thank you for watching all the 3 videos. Those who have watched, I am sure, I am firm at my side, if you will see all the parts of this consumer equilibrium by indifference curve approach, the video which I have made in 3 parts, first part, second part and third part, if you will go through these videos seriously, I think nothing will be left for you, and you will be easily doing the questions which will be asked in your exam. So prepare your notes, understand the things well, and whenever you feel any problem, contact me. I am 24/7 available for you people, and call me, give me, text me if you have any doubt over this theory. And thank you, bye bye, stay blessed, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।